glucose is a very important respiratory molecule, right? So monosaccharides are they're an important source of energy in respiration, and we are mainly talking about um glucose over here. Okay? So now moving towards it, they are also the building blocks of larger molecules such as many glucoses combine to form starch, and starch is a polysaccharide. Okay, so like starch, we have glycogen, and we'll do their orientation as well, that how starch and glycogen are different, and how glucose is of two types. We have an alpha glucose, we have a beta glucose. We'll do all of that, but it's just a brief introduction. Okay? Then carbohydrates also have the ability that they can synthesize other compounds, like they can synthesize other biological molecules such as amino acids when in need. So there's a whole new terminology for this process, which we'll do in A2s. But for now, just remember the fact that carbohydrates, they are a source of energy. Mainly, we are talking about monosaccharides, that they are a source of energy in respiration. They build larger molecules such as starch or glycogen. Then they are also responsible to synthesize other biological molecules such as amino acids. And the test for reducing sugars, again, this is the component of P3. This is you won't be tested on you won't be tested on these sort of tests, like these are the food tests. You won't be tested on this in your paper ones and paper twos. Rather, you'll be doing practically in your labs. Okay? So for reducing sugars, since all of the monosaccharides are reducing sugar and disaccharides are also reducing sugars except sucrose, for reducing sugar, we carry out this test via Benedict reagent, and we add Benedict reagent to our sample. And if reducing sugar is present, then you can see a color change from blue to green. Then it will proceed towards yellow, orange, and red. So if red color has been obtained, then it means that it has lots of reducing sugars. Okay? So blue is the color of Benedict reagent. But if the color change is observed from blue, green, yellow, orange, and red, you can conclude the fact that it has monosaccharides present. Rather, it has reducing sugars. Okay? But if we have non-reducing sugars, such as sucrose or all of the polysaccharides, so for non-reducing sugars, we have a different sort of test, and you'll do this in your labs as well. That you take 2 centimeter, it should have been a cube. You take 2 centimeter cube of sample. It could be a non-reducing sugar sample, and then in it you add 1 centimeter cube of HCl. Then you heat it for 2 till 3 minutes in a water bath above 80 degrees Celsius. And you have not studied about this bond as yet. I'll teach you in the upcoming slides. But this is the bond which is present between non-reducing sugars. This bond gets broken, and then you have to neutralize the entire sample with sodium hydrogen carbonate. This is the name of one thing, right? So do not consider it 18 alag alag cheeze boli hai. This is the name of one single reagent, which is sodium hydrogen carbonate. And then you add 5 centimeter cube of copper sulfate, and then you again heat it. So it's technical. You'll have to remember the steps when you'll perform this test in your labs. Okay? Your lab assistant will tell you all of the steps, but you'll have to remember this for your P3s when you'll have to practically perform this in your paper. Okay? And after this, your color change will be observed when we perform all of these steps. Okay? Um, Now moving towards the fact that carbohydrates, we have polysaccharides, which means that they comprise of many sugars. So there are two types of carbohydrates: structural polysaccharide and storage polysaccharide. Structural polysaccharides are responsible to provide structure such as cellulose. So cellulose is a polysaccharide, and it provides structure in form of cell wall, right? So cell wall of plant cell is made up of cellulose. This is why we are saying that cellulose is responsible to provide structure, and therefore cellulose is known as structural polysaccharide. So we now have to look at the introduction of cellulose, that it's a polymer of beta glucose. So, like I said, that there's a slight difference of orientation between beta glucose and alpha glucose. We'll talk about their orientations in the upcoming slide. But just remember the fact that cellulose is the polymer of beta glucose. So many beta glucoses combine to form cellulose. Then you'll have to remember this part. This is very important. You are tested on this for 4 marks, either for cellulose or for starch, where you have to write how they are exactly made. So this is like their formation, that they run parallel, like beta glucose run parallel to each other
to form hydrogen bonds, which is to form which are strong. It should have been R, which are strong, and then 60 to 70 such chains make microfibril, which in turns make macrofibril. Okay, this should have been macro. Microfibril in turn, when many microfibril combine, like 60 to 70 chains, when they make a microfibril, they in turn make macrofibril, and then cellulose fiber are laid together in a crisscross manner, like if you have ever seen braid, so it's in a crisscross manner. This is exactly how cellulose are laid together in the crisscross manner, and then they form cell wall, and between the break, you can see there's small gaps present. So these gaps make the cell wall completely permeable. It's not selectively permeable. Cell wall is absolutely permeable in nature. Okay, so it allows all sort of molecules to pass through it. So basically, what exactly is happening in the formation that cellulose is made up of the beta glucoses. It's the monomer for cellulose. Then many beta glucoses they run parallel to each other. For example, if this is a beta glucose, if these are like the beta glucose, they run parallel to each other. Okay? When they run parallel to each other, they'll form hydrogen bonds in between. Okay? So they'll form hydrogen bonds in between, and then 60 to 70 such like this manner of running parallel to each other should happen between 60 to 70 such molecules, and when 60 to 70 such chains will form, for example, ये जो तीन बनाई है ना मैंने इस तरीके की, when 60 to 70 chains they form microfibril. Micro is the smaller one, and then microfibril in turn make macrofibril, यानी वो और बड़ी हो जाती है जब वो कंबाइन होती है 60 to 70. फॉर एग्जाम्पल अगर 60 है, जब 60 और 60 कंबाइन होंगी तो they'll form macrofibril. ठीक है, and then वो macrofibril they combine with each other in such a manner कि वो criss cross हो जाती हैं. जैसे अभी ये तो अलग अलग है ना, फिर अगर हमने इसको criss cross करना है तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये. Just let me try. हो नहीं पाएगा but I'm just trying. यानी वो इस तरीके से कंबाइन होंगे और बीच में इसके कुछ गैप्स बनते जाएंगे, तो वो गैप्स आर गोइंग टू मेक सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल. ठीक है, सो ये 4 मार्क्स से टेस्ट किया जाएगा. I've like extracted these keywords from your marking scheme. तो इसमें यही जो है ना वो आप लिखिएगा पेपर में in order to get 4 on 4. Now moving towards storage polysaccharide. Storage polysaccharide में we have starch and glycogen, and they are insoluble in nature and mainly आपके store होते हैं. Glycogen store होता है, animals starch store होता है in your plants. The starch plants का storage polysaccharide है. Try to remember this point. ये ना लिख दीजिएगा फिर starch जो है वो एनिमल्स यानी हमारे अंदर जो है वो स्टोर हो रहा होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स में स्टोर हो रहा होता है. ठीक है, एंड अगर ये याद है होम्योस्टेसिस में यू हैव स्टडी कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है. ठीक है, तो ग्लाइकोजन हमारा मॉलिक्यूल है, यानी इट्स आवर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एंड इट्स मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अगेन इसकी वही आपसे फॉर्मेशन पूछी जाएगी. ट्राई टू राइट एग्जैक्ट पॉइंट्स. ठीक है, इनमें चेंजेस ना कीजिएगा बिकॉज आई हैव टेकन दीज लाइंस फ्रॉम योर मार्किंग स्कीम. ठीक है, सो अमाइलोज स्टार्च में दो कंपोनेंट्स आएंगे. स्टार्च में हमारे पास एक आता है अमाइलोज एंड एक आता है अमाइलोपेक्टिन. सो अमाइलोज जो है वो अनब्रांच स्ट्रेट चेन है ऐसे स्ट्रक्चर की जिसमें सेवरल अल्फा ग्लूकोजेस होते हैं. So when several alpha glucoses combine and they combine in a straight chain manner and then unbranched यानी कि इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जब अल्फा ग्लूकोजेस के कंबाइन हो रहे हैं दे आर इन अ स्ट्रेट चेन. ठीक है, एंड दे आर नॉट ब्रांच, यानी इनकी ऐसी कोई ब्रांच नहीं निकल रही कि मैं इसको ऐसे कंबाइन कर रही हूँ. राइट, इट्स नॉट ब्रांच, इट्स कंप्लीटली अनब्रांच्ड. सो दे मेक अप अमाइलोज. इस तरीके के व्हेन मेनी अल्फा ग्लूकोजेस कंबाइन they form amylose and they're joined by alpha 1,4 glycosidic bond. I'll let you know what this bond is. Abhi, I'll show the picture as well. Okay, so just ignore this for now, but remember this for your papers. And then amylopectin, the second molecule comes in. It's a backbone of alpha glucoses. It's also held by alpha 1,4 glycosidic bond, and it also has 1,6 glycosidic bond. Okay, I'll let you know what these bonds are. But just remember the fact that starch is made up of alpha glucose. Many amyloses combine in such a manner that several alpha glucoses combine in a straight chain manner and they're completely unbranched and they're held at alpha 1,4 glycosidic bonds. फिर इसके साथ amylopectin, it's a backbone of this entire structure. It comes in and it's like a binding a sort of thing which binds amylose at a 1,4 glycosidic bond, and it makes branches
at 1,6 glycosidic bond. ठीक है, आई नो कि अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स नहीं समझ आए, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ. फिर आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी. So now we have alpha glucose and now we have beta glucose. So glucose की we have two different orientations. Glucose का can someone tell me कि glucose का journal formula क्या होता है? C6H12O6. Excellent. C6H12O6. ठीक है. So अब इसके we have two different orientations. होगा यही C6H12O6 ही होगा, but different orientation में होगा. ये देखें, this is your carbon 1, ठीक है. This is your carbon 2. This is your carbon 3. This is your carbon 4. This is your carbon 5. And this one is your carbon 6. ठीक है. This one is your carbon 6. अभी तक इतनी बात समझ आई. आई हैव जस्ट मेड अ सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास 6 कार्बन अटैच हुए हैं. ठीक है. अच्छा, अब दिस इज नाउ योर कार्बन 1 ना. तो कार्बन 1 पे यू हैव अ हाइड्रोजन अपसाइड एंड beneath it you have hydroxide का ग्रुप. ठीक है. फिर इसके बाद आपने दोबारा से जो सेकंड कार्बन है उसमें भी यही ओरिएंटेशन रही कि हाइड्रोजन ऊपर एंड हाइड्रोक्साइड नीचे. कार्बन 3 पे एक ओरिएंटेशन का फर्क क्या आया कि यहाँ पर OH ऊपर आ गया एंड हाइड्रोजन नीचे चला गया. अभी तक जो हमने हाइड्रोजन लगाए थे दे वर अपसाइड, यानी दे वर अबव कार्बन. नाउ वी हैव हाइड्रोक्साइड अबव कार्बन. फिर अगेन इन कार्बन 4 नॉर्मल ओरिएंटेशन आ गई जिसमें हाइड्रोजन ऊपर है एंड हाइड्रोक्साइड नीचे है. फॉर कार्बन 6 अगेन थोड़ी सी चेंजेस आई जिसमें हमारे पास CH2OH कंबाइन हुआ और हाइड्रोजन नीचे चला गया और फिर लास्ट ऑक्सीजन यानी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया. ठीक है. सो अभी तक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कार्बन 1, कार्बन 2 यानी कार्बन पे हमेशा हाइड्रोजन ऊपर आता है एक्सेप्ट कार्बन 3 एंड कार्बन 6 पर. यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट ओरिएंटेशन हो रही है. कार्बन 1, कार्बन 2 पे हाइड्रोजन ऊपर था, कार्बन 3 पे हाइड्रोक्साइड ऊपर था इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन. ओरिएंटेशन चेंज हो गई. फिर फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन वापस ऊपर आ गया एंड लाइक फिफ्थ कार्बन पे CH2OH आ गया. अब नाउ द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज इज द डिफरेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है. यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज में कार्बन 1 पर हाइड्रोजन अपसाइड था, राइट. बट यहाँ पर इस कार्बन पर आपका हाइड्रोक्साइड जो है वो ऊपर लग जाता है एंड हाइड्रोजन नीचे चला जाता है. तो इस ओरिएंटेशन की वजह से we have two different types of glucoses which is alpha glucose and beta glucose. फर्क क्या आ रहा है कि कार्बन 1 पर अल्फा ग्लूकोज में हाइड्रोजन ऊपर है एंड बीटा ग्लूकोज में कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड है. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. वैसे ही हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे ऊपर आया, वैसे ही हाइड्रोक्साइड थर्ड कार्बन पे ऊपर आया, फिर फोर्थ कार्बन वैसे ही हाइड्रोजन ऊपर आया एंड 6 पर उसी तरीके से हमने CH2OH लगा दिया. So the easier part that you can remember is कि आप बीटा ग्लूकोज याद रख लो, बिकॉज बीटा ग्लूकोज याद हो जाएगा तो अल्फा खुद ही याद हो जाता है. बीटा ग्लूकोज में इट्स easier to remember in a manner कि पहले OH ऊपर आता है, फिर H ऊपर आता है, फिर OH आता है, फिर H आता है. तो this is like an alternating series ना, कि OH फिर H फिर OH फिर H, और ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट साइड पे तो इसका इनवर्स चलता है. ठीक है. एंड देन कार्बन 6 पर थोड़ा सा स्लाइटली टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि CH2OH होता है. सो अभी तक बताएं कि इसकी सेंस बन रही है, दोनों की ओरिएंटेशन समझ आई है. All right. Now I'm going to explain you the difference between glycosidic 1,4 bond and glycosidic 1,6 bond. Just give me a minute. ठीक है. सो नाउ वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कार्बन 1 है. ठीक है. दिस इज कार्बन 2. ये आपको बनाना भी आना चाहिए. एंड दिस इज योर कार्बन 3 एंड दिस इज योर कार्बन 4. ठीक है. अभी राइट नाउ आई एम मेकिंग समथिंग वेरी रैंडम. अभी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कंबाइन करके मैं कुछ दिखा रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता, बट मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाह रही हूँ. ठीक है. अभी कार्बन 1 है. अब लेट्स सी कि यहाँ पर C1 एंड C4 में कैन यू सी वाटर मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म. यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो मैं वाटर मॉलिक्यूल बना सकती हूँ ना. यहाँ से मैं अगर वाटर रिमूव कर दूं तो मेरे पास वही बॉन्ड बन जाएगा जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था. तो इसको मैं कह रही हूँ कि ये कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में मेरा एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया. ग्लाइकोसिडिक यानी मेरा ग्लूकोज के बीच में एक बॉन्ड बन गया. और 1,4 का मतलब है दैट बिटवीन द ओरिएंटेशन ऑफ कार्बन 1 एंड बिटवीन द ओरिएंटेशन ऑफ कार्बन 4
यहाँ पर कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4, तो इस वजह से दिस इज नोन एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अल्फा तो नहीं है, मैंने तो अल्फा बीटा को कंबाइन कर दिया है, बट अगर मैं इसको आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। गिव मी अ मिनट, मैं एक चीज आपको बनाकर दिखा देती हूँ। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ये बना लेते हैं। इफ ये हो गया दिस, एंड चाहे तो आप अपने पास ही बना लें, बिकॉज आई नो इट्स स्लाइटली टेक्निकल टू रिमेम्बर, बट हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा, तो बना बना कर ही आपको देखना पड़ेगा। CHOH, ठीक है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, ठीक है, और ये मेरा कार्बन 1 था। अब अगर मैं दूसरी साइड पे एक और अल्फा ग्लूकोज बनाऊं, सो इट्स गोइंग टू, कुछ गलत हो गया, सही है। ये मेरा कार्बन 4 था, बिकॉज दिस इज योर कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3 एंड दिस इज कार्बन 4। तो अगर मैं इस कार्बन पर वही ओरिएंटेशन बनाऊं, H की एंड OH की, एंड इफ मैं यहाँ पर कंडेंसेशन करूं बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल, तो होगा ये कि मैं OH को, मैंने फिर से ऑक्सीजन यहाँ बना दिया, H एंड O, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल, ये यहाँ से रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पर आई कैन नाउ से दैट आई हैव फॉर्म्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1 कार्बन 1 था एंड दिस इज योर कार्बन 4 की ओरिएंटेशन, तो इसलिए आई एम सेइंग कि यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, कैसे बना है? बाय रिमूविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अगर कोई कहेगा कि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब है कि उसने रिएक्शन करवाया है 1 कार्बन के बीच में और 6 कार्बन के बीच में। ठीक है, सो फॉर अमाइलोपेक्टिन यू हैव टू रिमेंबर, ये अमाइलोपेक्टिन में दोनों बॉन्ड्स आते हैं, अल्फा 1,4 भी एंड अल्फा 1,6 भी, बट जो अमाइलोस है उसमें सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक्सिस्ट करता है। मेक सेंस सो फार? आर वी ऑल गुड? समझ आ रही है? हेलो? नहीं भी आ रही है तो स्पीक अप सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। लेकिन ऐसे साइलेंट बने रहेंगे तो मुझे लगेगा मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ। कौन सी वाली मैम, बात अगेन? इसलिए मुझे समझ नहीं आया, आपने बीटा और अल्फा ग्लूकोज को दोनों को मिला के आपने कहा है कि ग्लाइकोसिडिक 1,4 बॉन्ड है, अल्फा ये क्या? नहीं, ये मैंने कहा था कि मैंने अल्फा और बीटा के बीच में मैंने ऐसे रैंडमली बनाया था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। वैसे जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का जिक्र करते हैं तो इट्स बिटवीन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में नहीं बनाया था। वो मैं सिर्फ समझा रही थी कि किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कार्बन 1, जैसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब है कि एक अल्फा का 1 कार्बन से आपने हाइड्रोक्सिल का ग्रुप लिया है, और आपने दूसरे अल्फा ग्लूकोज से फोर्थ OH का ग्रुप लिया और वहां पर आपने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा है। ठीक है, यस मैम, सही है, अब समझ में आ गया। अल्फा एक्सक्यूज मी और मैम। बीटा के बीच में ना बनाइएगा, अल्फा और बीटा के बीच में नहीं बनता। वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने वहां पे ड्रॉ किया था, बेसिकली बनता अल्फा अल्फा के बीच में ही है। अगर अल्फा का है तो अल्फा अल्फा ही होगा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन हुआ है और दूसरे अल्फा के फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन हुआ है। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है वो आपका, अगर इसका कभी फंक्शन लिखने को आ जाए तो फॉर 3 मार्क्स ही आएगा, एंड 3 मार्क्स के लिए 3 बातें आर मोर देन इनफ। ये it's ideal as food and energy stores because it's a storage polysaccharide and it has large in and insoluble nature। अच्छा, लार्ज एंड इनसॉल्युबल नेचर होने की जरूरत ही होती है। एज फार एज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स आर कंसर्न, उनका इनसॉल्युबल होना इज नेसेसरी, ताकि वो उनका रिजर्व मेंटेन रहे, राइट? अगर उनका रिजर्व मेंटेन नहीं रहेगा तो वी कैन नॉट क्लेम दैट स्टार्च और ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। उनकी जब नीड होनी चाहिए तब उनको कन्वर्ट होना चाहिए, अगर उसकी नीड नहीं है तो वो एक इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल की तरह जाके स्टोर हो सकता है।
ठीक है. So it does not change the osmotic potential within the cell because it's very large and it's insoluble. तो insoluble है तो सेल का वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिस्टर्ब नहीं करेगा. And then a lot of energy is released when starch is hydrolyzed. Obviously जब प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो वो स्टार्च को कन्वर्ट करता होगा ताकि उसकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती है. राइट. एंड देन स्टार्च का टेस्ट इज इम्पोर्टेंट कि उसमें आयोडीन का आप रिएजेंट डालते हैं और उसमें ब्लू ब्लैक रिजल्ट आपको मिल जाता है. फिर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोजन जो कि हमारे अंदर होता है, इट्स हाईली ब्रांच्ड देन स्टार्च. एक डिफरेंस, अगर 1 मार्क का डिफरेंस यूजुअली पूछते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बीच में, तो एक डिफरेंस है इसके स्टार्च इज द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स while glycogen is a storage polysaccharide of animals, right? Animals में हम भी आते हैं. And then कि glycogen is highly branched than starch, while starch जो है वो इतना ब्रांच नहीं होता, glycogen ज्यादा ब्रांच्ड होता है. And it's small but इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. तो यहाँ पर एक और डिफरेंस ये आ गया कि स्टार्च लार्ज होता है बट ग्लाइकोजन स्मॉल होता है. एंड क्योंकि वो स्मॉल होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उस पर एंजाइम ज्यादा जल्दी एक्ट अपॉन कर सकता है बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाता है. ठीक है, समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? मिनहा ऑल गुड. मिनहा, हिरा, अब्दुल रहमान, आरिफ, अब्दुल रहमान, उस्मान. ऑल राइट, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में अगेन यू नीड टू रिमेंबर हाउ. अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन ग्लूकोजेस, राइट? ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक का बॉन्ड होगा. और लिपिड्स के बीच में किसका बॉन्ड बन रहा था? वी टॉक्ड अबाउट इट. मैंने आपको सबके बॉन्ड्स अभी बताए हैं. लिपिड्स का बॉन्ड एस्टर होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स का बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमेशा दो चीजों के बीच में बनते हैं और जिन दो कार्बन के बीच में बनते हैं हम उसका नाम मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल 1,4 के बीच में बन रहा है तो वो अल्फा 1,4 हो जाएगा. इसी तरीके से प्रोटीन्स के बीच में द बॉन्ड व्हिच इज मेड इज नोन एज पेप्टाइड का बॉन्ड. ठीक है. अच्छा, अब फॉर पेप्टाइड बॉन्ड यू नीड टू रिमेंबर कि अमाइनो एसिड्स किस तरीके के होते हैं बिकॉज मेनी अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स. ठीक है. सो दिस इज योर अमाइनो एसिड नंबर 1 एंड दिस इज योर अमाइनो एसिड नंबर 2. अब होता क्या है that for amino acid you need to remember कि amino acids are NH2 CHR and R means any length of carbon hydrogen. ठीक है, अभी बताया था. CHR could be any length and then you have COOH, again the carboxylic का group, carboxylic का functional group. ठीक है. So this is your amino acid. This is your amino acid and you need to remember this because मेरे पेपर में यही आया था and मुझे उस वक्त नहीं पता था. I got 0 on 5 in this question. Arif is my very old student. Like मुझसे वो बहुत 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं. मैंने जब उनको O levels कराया था तब भी मैंने बहुत emphasis डाला था इसके ऊपर. So Arif, this is again here in ASP biology. मेरा फेवरेट पार्ट होता था ये O levels पढ़ाते हुए कि मैं हर किसी को बता रही होती थी that this you need to remember कि अमाइनो एसिड का मोनोमर ऐसा होता है. So NH2 ये यहाँ पे आपका N ये रहा, H2 उसके साथ ये रहा, फिर CHR and then carboxylic का ग्रुप. ठीक है. So this is your amino acid number 1. Then again this is your amino acid number 2. So NH2, CHR and COOH. ठीक है. अब now what we are supposed to do, we are now supposed to make a peptide bond. कैसे बनेगा? Again by the combination of water because हम यहाँ पे फिर से condensation करेंगे. तो कार्बोक्सिलिक का OH and अमाइनो ग्रुप का H, यहाँ से हमने ये कंबाइन करा और यहाँ से हमने रिमूव कर दिया वाटर की फॉर्मेट में. ठीक है. ये वाटर आपका यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया. अब बीच में क्या बचा? कार्बोनाइल ग्रुप. यानी जब कार्बन अकेले डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन के साथ तो वी कॉल दिस कार्बोनाइल ग्रुप. यू विल स्टडी दिस इन एएस केमिस्ट्री जब ऑर्गेनिक पे पहुंचेंगे. सो अभी के लिए बता दिए दैट दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप. तो नाउ एक कार्बोनाइल ग्रुप कंबाइन हो गया विद NH बिकॉज ये चीज आपकी बच गई थी. कार्बोनाइल का ग्रुप बचा एंड आपका NH बचा. तो अब इनके बीच में ये बॉन्ड जो बना है दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. एंड इफ अगर आपसे बनाने को आए तो यू हैव टू लेबल कि पेप्टाइड बॉन्ड अब यहाँ पर बना है कार्बोनाइल के ग्रुप के बीच में एंड NH के बीच में. ठीक है. सो आर वी ऑल गुड? समझ आइए कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है? यस मैम. Yes. ऑल राइट, ठीक है.
So again, it's made up of the elements carbon, hydrogen, oxygen, and sulfur. And amino acids make up protein. Amino acid monomer है protein का, and they're connected via peptide bond. फिर protein का test is that you take a sample में obviously protein होगा. You add burette के drops in it. Burette जो है वो blue color का होता है, and आपको color change मिल जाता है from blue to purplish color आपको obtain होता है अगर if your sample contains protein. ठीक है, so your burette test will give a color change from blue to purplish. ठीक है, Jazakallah khair and take care. I'll see you in next week. We'll complete biological molecules Saturday, and inshallah we'll begin with the other chapter, mitosis, on next Sunday, inshallah.